Hello everyone, welcome to Think Saksha, where every clue begins with learning. We are starting CUET PG Crash Course 2026 for the subject Forensic Science. I am Charu Saini, Forensic Science Educator on Think Saksha, and I'll be covering few topics of forensic science. So let's first discuss the exam pattern of CUET PG Forensic Science. Like earlier, it used to be like two separate parts in this exam, and first part is of your general aptitude, and second part is of your domain subject. And here it is forensic science. But now, from few years, it is coming in a combined form. Only 75 questions will be there. For each correct answer, you will get plus 4 marks, and for each incorrect answer, you will be getting -1 because there is negative marking in this exam. And for the exam, you will be getting 90 minutes. It will be a CBT, computer based test, multiple choice question, and there will be only one section. So, obviously, the maximum number of questions will be from your forensic science, like that is domain subject. But few questions will be there from general aptitude. Like 60 to 65 questions will be from forensic science, your domain subject, and 10 to 15 questions will be from general aptitude, logical reasoning, or analytical thinking, basic scientific questions. So let's start with our syllabus. So this is your syllabus for forensic science subject, and your code for forensic science is SCQP13. While filling your application form, please check the code carefully. So in your syllabus, first we have Introduction to Forensic Science, and it includes definition, history, development and scope of forensic science in India, basic principles of forensic science and its significance, organization and functioning of state and central forensic science laboratories, and ethics in forensic science. This video will be covering definition, history and development of forensic science. Scope of forensic science we'll study in next video, and if this video gets too long, we'll only be studying definition and history of forensic science. The term forensic originates from the Latin word forensis, which refers to a forum or belonging to court of justice and public discussion. ऐसा forum जो public discussion और courts of justice को belong करता है. So the people who don't know about forensic science, so the forensic science is simply the application of scientific principles and methods to legal questions and court proceedings. मतलब जैसे हमारी साइंसेज हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मेडिसिन है, अदर नेचुरल साइंसेज हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज होती हैं, तो जो भी इन साइंसेज में टेक्निक्स हैं, हमारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की जब हम उनको अप्लाई करते हैं, कहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स में, एंड देन इट इज़ प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ और द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, then it is termed as to be forensic science. I hope you understood. Forensic science is a multidisciplinary branch of science that applies the principle and techniques of biology, chemistry, physics, medicine and other natural sciences to the investigation of crimes and the administration of justice. और ये होता कैसे है? बाय रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंस. जो भी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंस हमें क्राइम सीन से मिलते हैं, बाय दैट उसको रिकॉग्नाइज करके, आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके एंड इंटरप्रिट, मतलब रिजल्ट बता के कि ये रिजल्ट हमारे पास आई है, ये रिपोर्ट है, उसको जब हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, दिस इज हाउ वी इन्वेस्टिगेट द क्राइम, एंड हियर thus forensic science is used. So let's now discuss the history of forensic science. So forensic science originate कैसे हुई? जो हमारा forensic science का significance है, it comes from the ancient civilization. Like लोगों को ये नहीं पता था कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उसका नाम फॉरेंसिक साइंस है, या फिर जो हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो क्या है, उनका नेम क्या है, ऐसा कुछ नहीं डिस्कवर किया था. बट इसका कहीं ना कहीं यूज़ जो है एंशियंट सिविलाइजेशन से होता आ रहा था. लाइक एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इन द स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स. अब ये बताओ, उन्हें ये थोड़ी पता था कि स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स आगे जाके फॉरेंसिक्स में काम आएगा.
नहीं, दैट्स वाई हम इसका एक ट्रेस होता है ना, जब हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हम ट्रेसेस लेके चलते हैं कि हाँ यहाँ से हमें जो है स्टडी ऑफ टॉक्सिन हुई थी, तो जिसकी वजह से हमें आगे जो ये स्टडी ऑफ टॉक्सिन हुई अभी कहाँ पे अप्लाई हुई, फॉरेंसिक साइंस में केसेस सॉल्व करने में। सो दस यहाँ से फॉरेंसिक साइंस जो है ओरिजिनेट होना शुरू हुआ था। Next, we have first recorded autopsy. In 44 BC, the Roman physician Antistius performed an autopsy on Julius Caesar. Julius Caesar के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। जब उनकी डेथ हुई थी तो एंस्टिटियस फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ऑटोप्सी की थी। तो देखो ऑटोप्सी उस टाइम पे किसी को पता होगा, है ना, बट उन्होंने कुछ सोचा कि लेट्स मतलब कि इसको एनालाइज करते हैं, बॉडी को एनालाइज करते हैं कि क्या कैसे डेथ हुई है। सो जो सीजर थे, ही सफर्ड फ्रॉम 23 स्टैब वुंड्स। द ऑटोप्सी रिवील्ड दैट ओनली वन वुंड इन हिज चेस्ट कोज्ड हिज डेथ। तो यहाँ से हमारी फोरेंसिक साइंस ओरिजिनेट हुई है। नाउ वी हैव अर्ली कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम चाइना। 13th सेंचुरी में सॉन्ग सी ऑथर्ड जी जुआन लू, आई डोंट नो द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, बट जिसका मतलब था द वॉशिंग अवे ऑफ रोंग्स। इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, ऑथर जी जुआन लू, इन्होंने ये बुक लिखी जिसमें इन्होंने बताया द यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड एंटोमोलॉजी इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब एंटोमोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब अगर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, लाइक उनकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, उनकी लार्वा साइकिल होती हैं, उनकी डेवलपमेंट साइकिल्स होती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं सेवरल इंसेक्ट्स की, तो उसको ये सब हमारा एंटोमोलॉजी में आता है। एंड सॉन्ग सी एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन हिज बुक दैट इज नेम्ड द वॉशिंग अवे ऑफ wrongs. He explained how to distinguish between accidental deaths and murders. इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना कि कैसे फर्स्ट केस जो है फॉरेंसिक साइंस का सॉल्व हुआ था। Then we have early polygraph-like tests. Ancient forensic methods also include saliva-based tests used to assess guilt. So पहले क्या होता था? In India, suspects were asked to spit out dry rice. In China, rice powder was used, and the principle was that guilty individuals under stress would produce less saliva. सपोज मान लो कि जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं, हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है। अब पहले क्या करते थे ये लोग, इनको ड्राई राइस खिलाते थे, लाइक खाना नहीं था, मुंह में रखना होता था। अब जिसको डर होगा, लाइक जो प्रेशर में होगा, वो उनके उस टाइम पे मानने की थ्योरी थी कि जो प्रेशर में होगा वो जो सलाइवा होगा ना वो कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वन जो जिसने कुछ नहीं किया है वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा नॉर्मली जितना करता है, और बाकी जो होगा वो कम करेगा। तो इस थ्योरी से वो सस्पेक्ट को पनिश करते थे, लाइक जो भी उनका क्रिमिनल होता था उसको पनिश करते थे। मिडल ईस्टर्न कल्चर्स मेड सस्पेक्ट्स ब्रीफली लिक heated metal rods. Burns और dryness were interpreted as signs of guilt. तो देखो जैसे हमने देखा यहाँ पे कि अंडर प्रेशर, ठीक है, जो सलाइवा होगा वो कम प्रोड्यूस होगा, तो ये क्या करते थे कि हीट मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हीटेड मेटल रोड होती थी उनको लिक करवाते थे। जब कोई उसको जिसके माउथ में सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो उसको लिक करेंगे तो उनको जो बर्न है, जो बर्निंग सेंसेशन होगी, जो ड्राइनेस होगी, जो बर्न्स होंगे ना वो कम होंगे, ठीक है। बट जिसके मुंह में ड्राइनेस होगी, ठीक है, जिसको ऐसे प्रेशर में होगा, ऐसे सलाइवा नहीं आएगा मुंह में, तो उनको जो बर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो वो इस बेसिस पे करते थे। वेल दीज आर नॉट द प्रॉपर मेथड्स टू डिस्क्राइब दैट वन इज गिल्टी और नॉट, बिकॉज इट कैन हैपन विद एनीवन, दैट अगर कोई भी आजकल के टाइम में अगर कोई भी सस्पेक्ट है, ठीक है, उसने नहीं भी कुछ किया है तो भी वो ऐसा हो जाता है कि अंडर प्रेशर हो जाता है आज की जैसी प्रोसीडिंग्स होती है उन केसेस को लेके। तो दीज आर नॉट द प्रॉपर मेथड्स टू बी फॉलोड, बट उस टाइम पे ऐसा किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव 16th and 17th centuries. इसमें क्या हुआ? यूरोपियन प्रैक्टिशनर्स बिगिन स्टडिंग कॉजेज ऑफ डेथ एंड इंटरनल इफेक्ट्स ऑफ वायलेंट इंजरीज। जो हमारी इंजरीज होती है, जो हमारी वूंड्स होती हैं, जब किसी को चोट लगती है तो उसको उन्होंने स्टडी किया कि इसमें इंटरनल इफेक्ट्स क्या हैं वायलेंट इंजरीज के। एम्ब्रोइज पेयर, फ्रेंच आर्मी सर्जन, एग्जामिन्ड इफेक्ट्स ऑफ वायलेंट डेथ्स ऑन इंटरनल ऑर्गन्स, कि अगर किसी की वायलेंटली डेथ हो रही है, सपोज किसी को किसी वेपन से कोई इंजरी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसका इफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स पे क्या होता है वो इन्होंने स्टडी किया। देन इटालियन साइंटिस्ट सच एज
Fortunato, Fidelis, and Paolo Zecchia studied structural changes in the human body caused by disease and laid foundations for modern pathology. So pathology में हम क्या करते हैं, यही तो स्टडी करते हैं कि इस डिजीज का कोज क्या है, तो उन्होंने वो उस टाइम से स्टडी करना शुरू किया. Then we have fingerprint analysis. Fingerprinting became a landmark forensic method by the late 19th century. आपको बस थोड़ा सा आइडिया रखना है कि ये सेंचुरी में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या डिस्कवर हुआ है, ठीक है. तो लेट 19th सेंचुरी में अराउंड 1880 जो हेनरी फोल्ड्स हैं, लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज, रिमेंबर दिस. हेनरी फोल्ड्स एंड विलियम जेम्स हर्शल वर अमंग दोज हु एस्टैब्लिश्ड द यूनिकनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स. इन लोगों ने बताया कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक होते हैं, जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक होते हैं और वो रिपीटेड नहीं होते. गाइज, डू यू नो दिस दैट फिंगरप्रिंट्स इवन के ट्विन्स में भी दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट आइडेंटिकल. एवरीवन हैव यूनिक फिंगरप्रिंट्स. फ्रांसिस गैल्टन डेवलप्ड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फिंगरप्रिंट्स. सो इसी चीज़ को स्टडी करते हुए फ्रांसिस गैल्टन ने फिंगरप्रिंट्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया. और जो सर एडवर्ड हेनरी है, इंट्रोड्यूस द हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम विच बिकेम अ स्टैंडर्ड फॉर फिंगरप्रिंट एनालिसिस. एंड टू मोर पीपल वर involved here, Azizul Haqiq and Hemchandra Bose. Interestingly, fingerprints had also been used in ancient China for verifying business documents. फिंगरप्रिंट्स की जो स्टडी है ना, वो जो हिस्ट्री है वो काफ़ी डिटेल में है, वो आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे. बट इतना है कि फ्रांसिस गैल्टन, सर एडवर्ड हेनरी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेम्स. हेनरी फोल्ड्स एंड विलियम जेम्स हर्शल, दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेम्स जिन्होंने फिंगरप्रिंट में डेवलपमेंट की. नाउ वी हैव 18th एंड 19th सेंचुरीज, जो उसमें पहले हमारे केसेस होते थे उनके बेसिस पे क्या डेवलपमेंट हुई है फॉरेंसिक साइंस से, कैसे इसको लिंक किया है वो देखते हैं. तो जॉन टेम्स केस था लैनकास्टर से, और टोन न्यूज़पेपर मैचिंग अ पिस्टल वॉर्ड लेड टू हिज कन्विक्शन फॉर द मर्डर. लाइक जो पिस्टल वॉर्ड होता है, इट इज़ यूज्ड इन पिस्टल्स, ठीक है. तो इसमें जो उसने वॉर्ड यूज़ किया था ना, वो उसने न्यूज़पेपर से बनाया हुआ था, और वही सेम न्यूज़पेपर का पीस उसके पॉकेट से मिला. सो ही वॉज कन्विक्टेड फॉर द मर्डर. एंड वॉरविक केस में क्या हुआ 1860 में, फुटप्रिंट्स एंड फैब्रिक इम्प्रेशंस हेल्प्ड कन्विक्ट अ फार्म लेबरर फॉर द ड्राउनिंग ऑफ अ मेड सर्वेंट. जो फुटप्रिंट्स थे और फैब्रिक इम्प्रेशंस होते हैं वो यूज़ करके इसमें जो फार्म लेबर था उसको कन्विक्ट किया गया. सो दिस ऑल टेल्स कि क्या क्या हमारे एविडेंसेस हो सकते हैं. आप समझ रहे हो, ये जो पिस्टल वैड है, ये हमारा पिस्टल से रिलेटेड हमारी इसकी फील्ड अलग होती है, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक्स. हियर इट इज. इन 1835 हेनरी गुडार्ड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड linked a bullet to a murder weapon using physical analysis. मीन्स उसने जो बुलेट होती है हमारी, ठीक है, उसको मिली जो क्राइम सीन पे या फिर बॉडी से, ठीक है, उसने उसको मैच किया, फिजिकल एनालिसिस किया कि ये बुलेट और ये दूसरी बुलेट जो है ये सेम है. लाइक दिस बुलेट्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मर्डरर. In 1920s, Kelvin Goddard's comparison microscope improved bullet and casing analysis. So comparison microscope में क्या होता है कि simple microscope का तो आपको पता होगा कि ऐसे सब्जेक्ट रखो और उसको फिर एनालाइज कर लो लेंस के अंदर, ठीक है. बट कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो हमारी स्टेज होती है ना वो दो होती हैं. लाइक दीज आर द टू स्टेजेस. अब यहाँ पे हम दो सैम्पल्स रख सकते हैं जिन्हें हमें साथ में कंपेयर करना है, और उसके बाद इनमें एक कनेक्टिंग ब्रिज प्रेजेंट होता है. दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. इसमें कनेक्टिंग ब्रिज प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा बाइनोक्यूलर लेंस होता है, जिससे हम दोनों सैम्पल्स को हाफ हाफ देख सकते हैं और उनको उनके करैक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि आर दीज सिमिलर और डिफरेंट. एंड गाइज रिमेंबर, ओनली similar things can be compared. We will study this in principles of forensic science later. By the 1970s, scientists developed methods to detect gunshot residue using scanning electron microscope. So what is gunshot residue? It is a important evidence in forensic ballistics, that is GSR. हमारी गन्स होती हैं, इनमें गन पाउडर यूज होता है, तो उसके जो रेजिड्यूज है ना, ठीक है, वो जो है जहाँ पे लैंड करते हैं, ठीक है, वहाँ से अगर हम उसको कलेक्ट करें देन इट इज़ कॉल्ड गन शॉट रेजिड्यू, ठीक है, गन पाउडर. और इसको एनालाइज कैसे करना है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो 1970s तक डिस्कवर हो चुका था. विल स्टडी दिस लेटर इन डिटेल.
Okay, let me tell you. Suppose if a person is firing, this is the hand, na? Like he's holding the gun. Okay, let it be. This is the gun, and here is the thumb, like this. It's his hand. Then GSR will be deposited here also, because bullet will leave the barrel of the gun and gunpowder will burst out. Then GSR will be present here. So usually GSR is collected from the hand of the फायर जिसने फायर किया है. In 1773, Carl Wilhelm Scheele developed the first chemical test for arsenic in corpse. मतलब arsenic is a poison, chemical poison, और इसके लिए उन्होंने chemical test identify करने के लिए chemical test develop किया. Valentin Rose 1806 and James Marsh 1836 expanded these techniques. Marsh methods were used successfully in murder trials. अब देखो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फॉरेंसिक साइंस जो है यूज़ में आने लगी, मर्डर ट्रायल्स में भी यूज़ होने लगी, मीन्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स में यूज़ होने लगी. ठीक है, तो जो हमारे केमिकल मेथड्स थे, हेयर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिकल मेथड्स को यूज़ करके हमने पॉइजनिंग का पता लगाया कि कौन सा पॉइजन है, और उस वजह से मर्डर ट्रायल्स जो है उनके लिए जो सस्पेक्ट्स होते थे उनको पनिश किया जाने लगा. देन ब्लड ग्रुप एनालिसिस एंड बॉडी फ्लूइड टेस्टिंग. इन 1930 कार्ल लैंडस्टीनर रिसीव्ड द Nobel Prize for classifying human blood into groups, a development that greatly advanced forensic investigations involving blood. तो उन्होंने क्या किया 1930 में, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्लासिफिकेशन दिया ह्यूमन ब्लड ग्रुप का. दैट इज़ वी नो बाय ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. हमें पता है कि ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ए होता है, B होता है, O होता है, AB होता है. ठीक है, तो उन्होंने वो क्लासिफिकेशन दिया. बाय द मिड 1990s फॉरेंसिक टेक्निक्स हैड एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ सलाइवा, सीमेन, स्वेट एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं सारे, उनके लिए 1990s तक फॉरेंसिक टेक्निक्स आ चुकी थी उनको एनालाइज करने के लिए. सपोज हमें क्राइम सीन पे ये सारे एविडेंसेस मिले हैं, तो हम उनको टेस्ट करने के लिए मेथड्स आ चुके थे. ये इन सब का लास्ट में आई विल गिव यू अ टेबल, कलेक्टिव टेबल. मॉडर्न एरा, दैट इज लेट 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी के बीच में क्या हुआ. 1984 में सर एलेक्स जेफरे डेवलप DNA फिंगरप्रिंटिंग. उन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग डेवलप किया कि कैसे हम DNA को एनालाइज कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैच करता है कि नहीं. Then in 1986, first use of DNA evidence in criminal case, and the case was UK Colin Pitchfork case. Please remember this case and studies also. 1990s, widespread use of STR, that is short tandem repeat analysis in DNA profile. ये सब भी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स. बट अगर आपको नहीं पता है तो इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा. 2000 इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन एंड बायोमेट्रिक्स. अब डिजिटल जो है 2000s तक हो गया था, तो उसमें डिजिटल फॉरेंसिक्स भी आ गई, फेशियल रिकॉग्निशन जो हम करते हैं, और बायोमेट्रिक्स जो हमारे यूज़ होते हैं, जैसे आयरिस होता है, हमारा फिंगरप्रिंट्स होता है, दीज आर ऑल बायोमेट्रिक्स. तो इन सब का एक्सपेंशन और इंट्रोडक्शन फॉरेंसिक साइंस में हो चुका था. 2010, दैट इज 2010, इसमें क्या हुआ था कि नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, फॉरेंसिक जीनोलॉजी, ये सब हमारे जेनेटिक्स के पार्ट्स हैं, तो ये इनका एमरजेंस भी हो चुका था और फॉरेंसिक साइंस से लिंक हो चुके थे. 2020 में क्या हुआ, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड जेनेटिक जीनोलॉजी. Next, we will see the 20th century developments in forensic science. In 1910, Edmond Locard established the world's first police crime laboratory in Lyon, France. 1932 में the FBI established its crime laboratory under J. Edgar Hoover. 1950s में major advances in the analysis of GSR, hair evidence and fiber and trace evidence. 1960 में क्या हुआ था, फर्स्ट यूज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी में गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है. कोई भी हमारा जैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी में एनालाइज किए जाते हैं. कोई भी केमिकल पॉइजन है, these all things are these poisons come under forensic toxicology, and gas chromatography was introduced 1960. 1970s, 1974, इसमें क्या हुआ था, development and application of scanning electron microscope for GSR analysis. So these are the important years.
दिस इज़ द टेबल फॉर हिस्ट्री, यू कैन स्क्रीन शॉट दिस टेबल। इसमें इन शॉर्ट सारी की सारी चीज़ें मैंने इन्वॉल्व कर दी हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। So I think in this video I'll not be able to add the development part. We will discuss it in next video. I have some practice questions for you. Solve these questions and comment the answers in the comment box. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इनके राइट आंसर्स। Screenshot them and solve and comment the answers in the comment box. These are the practice questions and PYQs also. And these are the other 5. There are total 10 questions. Give the answer in comment box and then we'll discuss in the next video. So guys, thank you and study well for your exam. Like this video and subscribe our channel for free CUET PG crash course. Okay, thank you.